Hello dear student, today homogeneous functions, that is verification of Euler's theorem. See question number 20th. If u equal to root of xy upon root of x plus root of y, then verify Euler's theorem for u. Means u is a function in terms of xy and its relation is given as root of xy upon root of x plus root of y. Here multiplication of root of x into root of y, that is root xy upon sum of here root of x and root of y. तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि how to verify the Euler's theorem for the function u. As you know very well, in the previous video I explained already proof of Euler's theorem and statement of Euler's theorem and others explanations. If you are new student on my channel, so you should refer first previous video, just previous video, that is statement of Euler's theorem, proof of Euler's theorem, mathematical representation of Euler's theorem, and other formalities, other explanations of the Euler's theorem. Then you should solve this question, means verification of Euler's theorem. So now see once again question number 20th. If u equal to root of xy upon root of x plus root of y, then verify Euler's theorem for u. See the solution. So we make two parts for the proof of or verification of the Euler's theorem. Here first part is, so solution for the first part, since u equal to root of xy upon root of x plus root of y. So we should break it as in terms of xy. So taking here root of x into root of y. So therefore u equal to root of y into root of x upon root x plus root y. So breaking in terms of two parts here, root of x into root of y into root of x upon root of x plus root of y. Why in this part? क्योंकि हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वहां पर भी रूट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी कांस्टेंट एंड दिस रूट ऑफ y विल बी कांस्टेंट. So differentiating partially with respect to x, we get and applying u into v formula. So therefore del u upon del x, derivative of u, del u upon del x, equal to root of y as it is into del by del x of root x upon root x plus root y, but it is of the form uyv. So using quotient rule of the differentiation or division formula of the differentiation, so here denominator, that is root of x plus root of y, into derivative of numerator, that is 1, here derivative of root x, 1 upon 2 root x, minus root of x into derivative of root x plus root y. So derivative of root of x is here 1 upon 2 root x, that is root x upon 2 root x, because derivative of y will be 0. It is a constant. Plus this part into del by del x of root y. So del by del x of root y will be 0. So here plus 0 is meaningless. Entire upon root x plus root y the whole square. See once again, actually we are applying here u into v. So for u into v formula, it is u derivative of v, but v in the form of, again in the quotient rule, means u upon v formula applicable for root x upon root x plus root of y. So root x upon root y, u upon v formula. So here denominator into derivative of numerator, means derivative of root x is 1 upon 2 root x, minus numerator means root x into derivative of the denominator, that is derivative of root x is 1 upon 2 root x plus 0, plus this part, this one, root x upon root x plus root y into derivative of root y, that is 0. So that part will be meaningless, do not write here, plus 0. Now entire upon denominator's whole square, that is root x plus root y the whole square. This is very clear. Now root y as it is here, root y as it is here,
After that, here denominators are same, 2 root x to root x. So taking down 2 root x into root of x plus root of y whole square as it is. In the numerator, we see that here root x plus root y into 1, that is root x plus root y, and here it is minus root of x. So minus root of x and plus root of x will be cancelled. Now root y into root y into root y becomes y upon 2 root x into root of x plus root of y the whole square. So del u by del x equals y upon 2 root x into root x plus root y the whole square. Similarly, the given expression means function u can be expressed as root x, taking out here root x into root y upon root x plus root y, and you can say differentiating partially with respect to y. So we get similar terms, and after simplifying we get del u upon del y equals x upon 2 root y into root x plus root y the whole square. तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं इसको कि सिंपली यू कैन से चेंजिंग x टू y एंड y टू x. अगर हम लोग इसमें x को y कर दें और y को x कर दें तो del u अपॉन del y मिल जाता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रिक फॉर द डिफरेंशिएशन. इफ डिफरेंशिएशन इज सिमिलर सो यू कैन चेंज, यू कैन अप्लाई चेंजिंग रूल. मीन्स सिमेट्री होनी चाहिए. अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है तो यू कांट अप्लाई दिस रूल. इफ क्वेश्चन इज सिमेट्रिकल सो दिस विल बी सेम. क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पर रूट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि u इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, इफ वी इंटरचेंज x एंड y वी गेट सेम अगेन. मीन्स यहाँ पर y इंटू एक्स अपॉन रूट वाई प्लस रूट एक्स मिलेगा, दैट विल बी सेम. सो दिस इज द सिमेट्रिकल. यहाँ पर सिमेट्री है, सो यू कैन अप्लाई दिस रूल मीन्स चेंजिंग x टू y एंड y टू x. अदरवाइज डू नॉट अप्लाई. तो देयरफॉर del u अपॉन del y इक्वल्स x, देखो यहाँ पर y है तो यहाँ x कर देना है, x अपॉन 2 रूट y इंटू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y होल स्क्वायर. ये डायरेक्ट हमें मिल जाता है. इन केस अगर डायरेक्टली किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन चेंज लाइक दिस. यहाँ पर रूट x लेना है, रूट x को आउट करना है, रूट x को यहाँ पर, रूट y को यहाँ पर, एंड डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y यू विल गेट सेम टर्म. ये टर्म मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये तो था चेंजिंग रूल. अब हम लोग आगे चलते हैं. हमारा जो यूलर्स फॉर्मूला है, तो यूलर्स फॉर्मूले में हमें क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई. वैसे मैं अपने जो थ्योरम में प्रूफ करके बताया हूं वहां पर है x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू जेड. वहां पर है ये फार्मूला. तो अभी हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स मीन्स डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू तो ये है. तो चलो इसको x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई एक्स किया यहाँ पर, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो x इंटू वाई अपॉन सेम डिनोमिनेटर. सो वी राइट हियर x इंटू वाई अपॉन टू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई द होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइंग बाय y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इंटू डेल यू अपॉन डेल y, दैट इज x इंटू वाई अपॉन टू रूट वाई इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई द होल स्क्वायर. तो ये टर्म हमें मिल गए. मीन्स x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई. तो ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द यूलर थ्योरम को सॉल्व करते हैं. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट हैं और हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें, जस्ट प्रीवियस वीडियो, वहां पर ऊपर ही लिखा हुआ है यूलर थ्योरम फुल एक्सप्लेनेशन, वही वीडियो क्लिक करना है, ओपन करना है. तो वहां पर हमने दिया है कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू जेड. मैं भी फॉर्मूला यहाँ पर आगे देता हूँ लिख करके. तो यहाँ पर ये हो जाएगा टर्म जो अपना मिलता है, यहाँ पर भी सेम आ गया. तो वी सी दैट x इंटू वाई अपॉन रूट एक्स टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर प्लस x इंटू वाई अपॉन टू रूट वाई इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर. सो टेकिंग कॉमन टर्म्स 1 अपॉन टू रूट एक्स प्लस रूट वाई द होल स्क्वायर. और क्या करना है, देखो x अपॉन रूट एक्स, यहाँ पर x अपॉन रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा न्यूमरेटर में, रूट एक्स इंटू रूट वाई, ये हो गया रूट एक्स इंटू रूट वाई, प्लस यहाँ पर भी y अपॉन रूट वाई दैट इज रूट वाई ओनली.
तो रूट वाई इंटू एक्स मीन्स रूट वाई इंटू एक्स यहाँ पर हो गया, तो रूट एक्स इंटू वाई प्लस रूट वाई इंटू एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई द होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ब्रैकेट का ध्यान रखना है। तो ठीक है, आइए अब यूलर्स थ्योरम यहाँ पर हम लोग फार्मूला भी दे देते हैं और आगे का प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं यहाँ पर। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो हियर रूट एक्स इंटू रूट वाई कॉमन, क्योंकि ये रूट वाई इंटू रूट वाई है 2 टाइम्स, यहाँ पर भी रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, तो 1 टाइम इज कॉमन, रूट एक्स रूट वाई कॉमन, रिमेनिंग पार्ट इन द ब्रैकेट रूट वाई यहाँ पर और रूट एक्स यहाँ पर, तो रूट वाई प्लस रूट एक्स। क्लियर, ये मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट सेम टर्म्स अगेन, तो रूट एक्स इंटू रूट वाई कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, रिमेनिंग टर्म विल बी रूट वाई प्लस रूट एक्स अपॉन सेम डिनोमिनेटर 2 रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई द होल स्क्वायर। अब इसके बाद वी सी दैट देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई और यहाँ पर भी रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो दिस विल बी कैंसल्ड 1 टाइम, ये क्रॉस आउट कर सकते हो यहाँ पर 1 टाइम क्रॉस आउट, देयरफॉर एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स रूट ऑफ एक्स वाई, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गए, रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई, 1 टाइम ओनली, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम कैंसिल हो चुका है। तो ये तो रहा हमारा अभी जो हमने फंक्शन को प्रूफ किया कि यहाँ पर x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू रूट एक्स वाई अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। अब क्या करते हैं, यूलर थ्योरम का जो राइट हैंड साइड है मीन्स उसकी डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में, put x equal to x into t and y equal to y into t, we get f of xy इक्वल रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। जो भी क्वेश्चन दिया है ये u इक्वल टू था रूट एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, उसी को हम लोग लिखेंगे f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स वाई वी गेट हियर रूट ऑफ एक्स इंटू टी इंटू वाई इंटू टी अपॉन रूट एक्स टी प्लस रूट वाई टी। तो इनको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, देखो टी इंटू टी हो जाएगा रूट ऑफ टी स्क्वायर और रूट टी स्क्वायर की वैल्यू होती है ओनली टी, इसमें रूट टी कॉमन है, तो ये रूट टी को कॉमन किया, तो रूट टी स्क्वायर मीन्स टी हो गया, टी अपॉन रूट टी, तो टी अपॉन रूट टी को सॉल्व करोगे तो टी रेज टू 1 माइनस हाफ, ये हो गया टी रेज टू हाफ, और रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, दिस इज द सेम फॉर्मेट, इसी फॉर्म में आया हुआ है, तो दिस विल बी एफ ऑफ एक्स वाई, तो टी रेज टू हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये सिमिलर पार्ट आते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हेंस u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2 ऑफ डिग्री हाफ, क्योंकि यहाँ टी रेज टू कितना है हाफ, ये जो भी वैल्यू आएगी जो भी डिग्री आएगी दैट वन इज डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, hence we can say u is a homogeneous function of degree half। अब यहाँ पर दैट इज बाय यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम क्या है, यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि मैं यहाँ रिपीट करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैंने सेम फॉर्म में रिपीट किया है कि अपना फंक्शन इस क्वेश्चन के लिए फंक्शन क्या है, u है, तो फंक्शन अगर क्वेश्चन के लिए u है तो हम लोग u के फॉर्म में ही एक्सप्लेन कर देते हैं थ्योरम को, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, देखो एन यू, तो यहाँ पर क्या आएगा x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हाफ यू, क्योंकि जो डिग्री है ये n है, डिग्री n है तो n की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर हाफ इंटू यू, देखो यहाँ पर है n इंटू यू, तो n की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू यू, और u क्या है रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो हाफ इंटू रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो भी पार्ट हमें यहाँ पर मिला था, ये फर्स्ट पार्ट में देखो रूट एक्स वाई अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई, सेम यहाँ पर हमें मिल गया 1/2 रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई, सेम पार्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड,
यूलर्स थ्योरम प्रूव्ड। तो ये यूलर्स थ्योरम का वेरिफिकेशन बहुत ही क्लियर कट है। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख करके हाईलाइट कर दिया हूँ और यहाँ पर दिखा दिया हूँ कि यही पार्ट है जो हमारे पास है एन यू, दैट इज हाफ यू, ये अपना थ्योरम है, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। ये मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर दिया गया। तो इसी फॉर्म को हम लोग बार बार इसको रिपीट करते रहते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। हमेशा वी प्रूव ऑलवेज x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हाफ इंटू यू, दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब देखो हाफ यू, यू की वैल्यू क्या थी, यू की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में है यही है रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। वहां से यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और डिग्री हाफ ये वेरीफाई हो गया, देयरफॉर यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फुल्ली कंप्लीटेड। तो डियर स्टूडेंट, यूलर थ्योरम के और भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को वेरीफाई करने के लिए थ्योरम या अदर टाइप्स के क्वेश्चन और भी, अभी जैसे हमने अभी आज क्या लिया, 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, अभी इसके 3 वेरिएबल्स या मोर देन 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस अब भी रिमेनिंग है। वो आने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं कमिंग वीडियोस में मैं उसको अपलोड करूंगा। और अभी एग्जाम नज़दीक आ चुका है, धीरे धीरे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और होमोजेनियस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड फर्दर चैप्टर्स। तो इसको अदर फंक्शंस में मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए भी मैं सॉल्व करके यहाँ पर दिखाऊंगा, वेरीफाई करूंगा यूलर थ्योरम को, और इस फार्मूले को और भी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाऊंगा जैसा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में दिखाया है, प्रूफ करके बताया। तो डियर स्टूडेंट, और भी मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यूनिवर्सिटी के पेपर्स को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।